So good evening, everyone, and welcome to our today's talk show, where Rahul Srivastav sir is our guest of honor, and Nasiha Samin is joining as a panelist. Rahul sir has been the director of Itwar. It's a short movie, and he has been doing different sorts of short films and all these things. Apart from that, as he said, that he's also the writer also. And Nasiha is one of the author whose book Public City has been making rounds. And actually, I was fortunate enough to read few of her stories. So welcome once again, everyone. Thank you. Okay, so coming to the question. So first question from Rahul sir. How did you come into this direction? Directing short films and all those things. No, I thanks everyone for having me. I hope we'll have a nice session here. How come direction? Actually, I'm a graduate of Film and Television Institute of India, where I finished my education in film editing, and after that, I've been working as a film editor, and I happen to edit films like Sahab Bibi or Gangsters, Sahab Bibi Gangster Returns, and Bullet Raja, and which is usually considered to be a predestined path for most of the editors. They end up being a director, but I always wanted to be one because I been writing stories since long. Editing I definitely learned in the institute because I had somewhere heard and got to know that all the great directors like Rishikesh Mukherjee and everyone, they were very good editors in the beginning, and that definitely helped me to take a decision to first understand the medium from the editing point of view, and then obviously get into direction. And it actually proved right because that brings a lot of economy, the way you shoot, also the way you understand, because in a way you are rewriting, restructuring the whole film. So that's how, and it is all Film Institute Pune's training which helped me to shape my career whatever or wherever I am. So it started with editing and now in direction. And what was the idea behind this Itwar? Well, there are plenty of other stories which are lying in my folder of my MacBook, and this usually happens with all of us. We keep writing, leaving some traces of ideas somewhere in the notes, and I keep saying that we don't choose an art form or a story. Story chooses you, or the art form chooses you to get to get a life. So maybe out of all the stories I've written, this story chosen me first and said I wish to come out and would like you to film this, and that's how it happened. The idea behind the film was that I had been experiencing this that while in Mumbai, and the mental health, I say anywhere, but in Mumbai specifically, when the city is running fast, everyone is here to make a career, and then a few days you realize that things are not going your way, and you feel irritated, you feel dejected, you feel there's a kind of disappointment in you, and the whole world looks bleak to you, in the sense that when you sit at home, the same things you feel irritated. I have gone through the same thing, that when I'll go out, I'll get irritated with the Mumbai roads, traffic, I'll be screaming at anyone. And that is when I'm happy, when I have work, when my work is my films, I'm getting films to do, I'm getting recognition. I feel happy in the same space, the same traffic is there, same roads are there. So then somewhere I was struggling with the idea that what is it which makes me happy. So I realized that the peace is deep within. I mean, it may take you some babas and thousands of rupees to realize कि भाई जो दिल के अंदर जैसा महसूस करोगे वैसी दुनिया दिखेगी. तो बस वही इसकी वो थी, जड़ थी, वो वही से इसका जेनेसिस था इस आइडिया का, कि अगर आप अंदर खुश है तो दुनिया खुश दिखेगी, मन भला है तो सब भला रहेगा, नहीं तो हर जगह दुख ही मिलेगा आपको. नहीं, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि कहीं ना कहीं वही सड़कें हैं. हेलो अनिल सर. तो आपने ये बात बहुत सही कही कि वही सड़कें हैं, वही ट्रैफिक है, और एक टाइम पे अगर मतलब काम अगर मिल रहा है, हम अपने रिकॉग्निशन मिल रहा है, हम काम जो करना चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, तो वही सारी चीजें बड़ा मेलोडियस लगती है. और नहीं हो तो लगता है कहाँ फंस गया, क्या मतलब मुंबई में तो बस भगम भाग मची है. खैर, शॉर्ट स्टोरी पे आने के बाद मैं नासिहा से मेरा एक सवाल रहेगा. आपने स्टार्ट करी नॉवेल लिखने से, और बहुत कम लोग हैं नॉर्मली डेब्यू जो ऑथर्स हैं वो सीक्वल लिखते हैं, और हायर का आपने सीक्वल भी लिखा, और अगर मैं सही हूं तो आप शायद थर्ड पार्ट भी हम वेट कर रहे हैं, राइट? नहीं, थर्ड पार्ट नहीं है, बिकॉज पद्मा किशोरी का स्टोरी वहीं पे एंड होता है, व्हेन she becomes what she wanted. एक 16 ईयर की लड़की को अचानक एक क्वीन बनाना, एंड उसके लाइफ में जिस तरह से टॉपसी इंटरव्यू होता है, एक हस्बैंड मिलता है जो बोलता है, हे मैंने तुम्हें से शादी की है जस्ट बिकॉज मेरे किंगडम को एक वारिस चाहिए, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है. उसके सपने, एंड द टाइम शी बिकम्स द क्वीन मदर, वो उसका जो जर्नी है कि, एंड जोधगढ़ इज known for the conspiracies. तमीरा का नाम और निशान नहीं है.
इस पूरे जोधगढ़ के इतिहास में वो लड़की गायब हुई कहाँ, और उसने वो एक किरदार है जिसने जोधगढ़ की पूरी स्टोरी ही बदल दी थी, हिस्ट्री ही बदल दी थी. एंड दे वर वेरी सक्सेसफुल इन जस्ट इरेजिंग हर स्टोरी, हर नेम फ्रॉम एवरीवेयर. सो इस तरह के खतरनाक माहौल में एक लड़की जिसके सपने सिर्फ ये थे कि मैं एक ब्यूटीफुल प्रिंस से शादी करके एक बहुत अच्छा लाइफ लीड करूंगी, ये आके फंसती है ऐसे जगह में जहां एक किंग है जिसने चार शादियां की है, लेकिन अपने दिल से सिर्फ एक ही से प्यार करता है, जो पहली वाइफ है उसकी. ये लड़की है जो सोचती है कि नहीं, अब तो मुझे मेरा लाइफ में अपना हक चाहिए, एंड आई जस्ट कांट बी अ सेकंड फिडल टू ऑल दिस पीपल, आई कांट बी अ पॉन. लेकिन एट दैट एज शी कैन नॉट गो अहेड एंड से कि नहीं मुझे ये चाहिए, आप जो कर रहे हो गलत है. शी हैज टू मेक हर वे थ्रू, वो पॉलिटिक्स के अंदर रह के ही उसको खेलना है. तो शी रीचेस अ पॉइंट, यस स्कोप है टू डाइवर्ज द स्टोरी इनटू तमीरा. तमीरा इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो आके बोलती है मुझे प्यार से मतलब है, आपका राजपाट रखो, ना मुझे शादी चाहिए ना प्यार चाहिए, आई एम अ फ्री स्पिरिट. They ask hope, but not in Padma Kishori's story now. तो हाउ फिर फिर वो परप्लेक्सिटी, मतलब आप नॉवेल लिख रही थी कंप्लीटली जैसे कहते हैं पुराने राजा महाराजाओं के टाइप वाले कि भाई वहां बहुत ही पॉलिटिक्स चल रहा है थ्रोन के लिए, राजपाट की, फिर एकाएक उठ के परप्लेक्सिटी, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों? परप्लेक्सिटी का जो स्टोरी का बेस आया, वो हम ऐसे ही बातें कर रहे थे कि गुड़गांव जैसा शहर कभी सोता नहीं है, मतलब कुछ भी हो वो चलता रहता है अपनी धुन में. आई नो इट लुक्स मोर लाइक मुंबई, बट गुड़गांव हैज इट्स ओन फ्लेवर. वो अपने मनमौजी शहर है वो. और वो शहर रुका सिर्फ 3 बार, और उस रात के अंदर क्या हो सकता था. सो इट ऑल स्टार्टेड कि लॉकडाउन में अगर एक लड़की कहीं पे, आई मीन ये जो मेन कैरेक्टर है वो एक बारकीप है, एंड उसको किसी ने बोला कि देख भाई ये रेड पड़ने वाली, तो ड्रग्स हटा दे यहाँ पे, कहीं डिस्ट्रॉय कर दे. आई रिमेम्बर द होल स्टोरी. या एंड शी कम्स बैक पूरा, और अचानक शी रियलाइजेस कि शी इज ट्रैप्ड, कॉप्स आ रहे हैं, अब करना क्या है, फेंक नहीं सकती, कहीं भी जाएगी शील बी कॉट. सो शी थिंक्स कि अब बेस्ट वे है कि थोड़ा सा ही पानी टंकी में है, शी इज इन द टॉप फ्लोर, वो पूरा पैकेट्स वहीं पे डाल देती है. एंड नाउ उस अपार्टमेंट में सिर्फ 6 फैमिलीज हैं. नाउ द गेम बिगिंस. पूरी रात दे ड्रिंक द स्पाइक्ड वाटर, एंड व्हाट हैपेंस इन द होल नाइट इज द स्टोरी ऑफ 6 डिफरेंट फ्लैट्स. बेसिकली व्हाट आई मतलब मेरी, इवन आप जब एयर देखोगे, एक बड़ी नॉवेल के अंदर सारी बहुत सब स्टोरीज है जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए चले जाते हैं. जैसे तमीरा is 3 generations before Padma Kishori, but she is still a part of the integral part of the story. So that's how ये 6 family की story आई perplexity से. And then it started कि इसके पहले और कब गुड़गांव रुका था. It was 1947 during curfew. And then it was again a person, ब्लॉसम हवेली में आके नॉक करती है, बोलती है कि मुझे बाहर कर्फ्यू चल रहा है, राइट्स हो रहे हैं, मुझे शेल्टर चाहिए. बट द होल स्टोरी, आई मीन, एंड वहां पर देयर वाज ऑलरेडी अ प्लान इन मोशन बिटवीन 2 brothers. देयर वाज सम, आई कैन से सम प्लॉट दैट वाज ऑलरेडी इन मोशन, एंड दिस गर्ल reaches there, and later we find out that it was not by coincidence that this girl reaches there, and that's Libni's story. The last story is set in 1857 when Sipahi mutiny ho raha tha, and then Meher was a girl who had to travel from Gurgaon to Jaipur just to escape East India Company soldiers. तो वो सोचती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी सोल्जर्स के हाथों लगने से बेहतर है एक टूटा वीरान सा हवेली है, मैं यहाँ रह जाती हूँ. रात की ही बात है, पता है लोग बोलते हैं कि वहां अजूनी घूमती है, लेकिन लेट मी जस्ट टेक अ शेल्टर देयर. लेकिन जब वो वहां पहुंचती है, देयर इज अनदर कपल हु रीचेस देयर, एंड अजूनी की कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती है. अजूनी सच में पूरी रात उस खाली डेरा में घूमती रहती है. सो दैट्स द नाइट हाउ दीज 3 people survive Ajuni and
whether they survive or not, that obviously again, let us remember Charm. and that's all. You have created enough. You have created enough intrigue for us to read the book novel. कौन भेज रहा है, कैसे मिलेगी, और share the link. Whatever. I will. Please share me the address. I will send it across. It's an honor for me. Thank you. Okay. Thank you. Anand sir joined late, but let me tell you guys, Anand sir is the lyricist of the Etwar movie. So sir, एक question आपसे है. Anand sir, am I audible? Am I audible? Yeah, you are audible now. Yes. Okay. So how was your So sorry, experience? मैं थोड़ा It's सा okay. टेक्निकल प्रॉब्लम्स में फंस गया था. We are living in a different time period actually, so these things are normal. Okay, so how was your experience? While writing the songs and the lyrics of the Itwar. The experience was wonderful because मैं जिनके साथ काम कर रहा था, मैं उनको इस प्रोजेक्ट से पहले से जानता हूँ. तो ऑफ कोर्स जब आप ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जिनको आप जानते हैं, जिनके साथ आपका एक अच्छा कंफर्ट लेवल होता है, तो फिर काम करने में मज़ा आता है, क्योंकि एक तो आपको लिबर्टी मिलती है काम करने की, साथ ही आपके पास अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप कुछ अच्छा काम करें. तो डेफिनेटली ये गाने का लिखने का एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा, बहुत वंडरफुल रहा, बिकॉज राहुल जी जो डायरेक्टर हैं वो उनको मैं पहले से जानता था, और उन्होंने मुझे पूरी छूट दी कि आप अपनी तरह से लिखें और कुछ अच्छा लिख के लाएँ. जिन्होंने कंपोज किया है शांतनु सुधा में, वो भी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, तो उनके साथ काम करने में भी बहुत मज़ा आया. हम लोगों की अच्छी ट्यूनिंग है, तो उसकी वजह से हम लोग अच्छा काम कर सके. अच्छा, जैसा आपने बताया कि राहुल सर पर मैंने इनके साथ बिल्कुल इसलिए काम नहीं किया क्योंकि इनको मैं पहले से जानता था, क्योंकि इनके इतने अच्छे आप इनके जश्न रेखता में इनकी इतनी अच्छी कविताएं, इनका अपना चैनल है, उस पर इनके बड़े अच्छे अच्छे और भी गाने, तो इनका मैंने सब क्वालिटी चेक करने के बाद काम किया. दोस्ती के लिए बिल्कुल काम नहीं किया इनके साथ. डायरेक्टर साहब साथ में है, तो एक सवाल है आपसे, आनंद जी, आपसे सवाल है. अक्सर ऐसा कई बार इंटरव्यूज में ऐसा कई बार कहा जाता है लिरिसिस्ट के बारे में, जो गीतकार जी ने कहते हैं हिंदी में, कि डायरेक्टर्स उन्हें कहते हैं कि भाई मुझे सिर्फ वो हुक स्टेप जो होता है, हुक लाइन जो होती है, वो मुझे अच्छी चाहिए, और बाकी मतलब चलेगा, चल जाएगा. आई विल नॉट, बिकॉज वी आर ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, सो आई विल नॉट यूज दोस वर्ड्स. ठीक है कि चल जाएगा. तो ऐसा कोई प्रेशर था आप पे कि नहीं, अगर मूवी का जो गाना बनाना है या जो ट्रैक सॉन्ग है जो भी है, बस ऐसा हो कि मतलब इट शुड बी कैची, या मतलब लिरिक्स की जो कहते हैं कि कहीं ना कहीं सुनने के बाद थोड़ा सा दिमाग में एक फील गुड फैक्टर है, तो ऐसा कोई प्रेशर था? जी, वैसा प्रेशर लकीली बिल्कुल नहीं था. उसका कारण ये था कि चूंकि फिल्म में अच्छे एक्टर थे, अच्छी कहानी लिखी हुई थी, डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि हमारी फिल्म तो बड़ी ख़राब बनने वाली है, तो आप कुछ गाने में कुछ स्टेप डालो तो कुछ तो प्रमोशन हो पाए उसका. तो ऐसा बिल्कुल मुझे प्रेशर नहीं मिला, क्योंकि फिल्म ही इतनी अच्छी बन रही थी, उसमें सब लोग काम इतना अच्छा कर रहे थे. तो जैसा कि मैंने कहा, पूरी तरह से लिबर्टी थी, पूरी छूट थी कि आप जैसा चाहें वैसा लिखें. जी, क्वालिटी वर्क हो सिर्फ, बस, है ना. पर नितीश, आपने चूंकि ये चीज कही है, तो ऐसा कभी ना कभी आपके भी अरमान पूरे करेंगे. जब फिल्म बड़ी खराब रहेगी तो टाइटल सीक्वेंस में एक आइटम नंबर तो लिखवाएंगे आनंद से, पक्का. सर, आइटम नंबर की आजकल बड़ी धूम है वैसे यंगस्टर्स में. हाँ, तो ये ना आनंद ने तो एक सनी लियोनी जी की सीरीज थी, उसके लिए भी लिखा था, तो मैं तो इनसे एक दिन लिखवाऊंगा कुछ ऐसा सॉन्ग जो कि मेरे लाइट एंड ट्रैक में चल पाए, तो उसके लिए भी तैयार रहिए, एक दिन करेंगे जरूर से. अरे बहुत आनंद जितना आराम से बोल रहे हैं उनका आराम से मिलेंगे. मेरा एक क्वेश्चन है. हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ, राहुल सर, जिस तरह की वेब सीरीज और फीचर फिल्म कहीं ना कहीं जो आजकल आ रही है, प्रॉब्लम ये है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर नहीं देख सकते. तो हेलो, सुन रहे हम लोग. हाँ, उसको मतलब एक फैमिली जो टाइम होता है कि फैमिली के साथ एक टाइम स्पेंड करते हैं, एक वेब सीरीज या मूवी देखते हैं. आजकल इतना ज्यादा वल्गैरिटी आ चुकी है कि मार्केट का जो स्ट्रेटेजी रहता है कि अरे अगर ये सब ऐड नहीं करेंगे तो पब्लिसिटी नहीं मिलेगी, लोग नहीं देखेंगे, लोग कंटेंट नहीं देखेंगे. तो क्या ये जरूरी है कि अगर एक अच्छा ऑडियंस हमें चाहिए अगर, तो इसमें विदाउट जो डायलॉग्स हैं, अब्यूजिंग वगैरह होती है, उसको अगर इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो मार्केट में वो चलेगी या नहीं चलेगी? क्योंकि जो इतवार फिल्म है, जो मेरा पर्सनली जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इतवार फिल्म के थ्रू मैंने ये जाना कि अगर ऐसी मूवीज या वेब सीरीज फिल्म आती हैं तो हम फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं, और एक पॉजिटिव थॉट माइंड में जाएगा कि हाँ, इस तरह की फिल्में भी बनती हैं. तो आप थोड़ा सा प्लीज मुझे ये बताइए कि आजकल जो वेब सीरीज आ रही हैं, कहीं ना कहीं उसमें
एब्यूजिंग बहुत ज्यादा है, एडल्ट सीन भी इंक्लूड करते हैं, क्या विदाउट उसके वो नहीं चलेगा? मेरे ख्याल से आप दो सवाल वो एक साथ पूछ रहे हैं। पहली बात तो ये बोलूंगा, फैमिली टाइम। पहली बात, सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि कोई क्या साथ में फैमिली टाइम बिताना चाहता भी है कि नहीं? पहली बात तो हम सब अकेले अकेले अपने अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं। क्या हम साथ बैठ के अपने मम्मी पापा या बच्चों के साथ बैठना चाहते हैं? अगर बैठना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि कंटेंट अवेलेबल नहीं। आपने अपने आप को बड़ा बना लिया है, अपने आप को एडल्ट डिक्लेयर कर दिया है, और आपको कहीं ना कहीं बड़ा मजा आता है वो गाली गलौच और नंगापन देखने में, इसलिए आप उसको ब्लेम कर रहे हैं। फैमिली टाइम बिताने के लिए ना वेब सीरीज चाहिए, ना फिल्म चाहिए, ना टीवी चाहिए, सिर्फ आपका परिवार चाहिए। बहुत ही बढ़िया। हाँ, दूसरी बात, अगर आपको चाहिए ही चाहिए कि हम फैमिली टाइम बिताएं और सामने टीवी चलती रहे जिससे हमें एक दूसरे का चेहरा न देखना पड़े, तो पंचायत देख लीजिए, तो फिर कुछ और भी देख लीजिए, गुल्लक देख लीजिए, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आप देखना वही चाहते हैं अकेले में, और फिर ब्लेम करते हैं कंटेंट को। दूसरी बात है, हम बहुत कुछ रहेगा अवेलेबल और सबकी प्रासंगिकता है उसके हिसाब से, कि अगर कोई गैंग्स ऑफ वासेपुर में कह रहा है कि हम कह के लूंगा, और अगर उसको चाकू से 40 बार गोदना है या 200 राउंड फायर करना है तो वो वैसे ही करेगा। और अगर वो जो हमारे शहर में, जैसे कि बहुत से लोग होता है भाषा का, आपको बताएं, बैंड्रा में एक रेस्टोरेंट, उसका नाम है पापा पैंचो, ठीक है? बहुत लोग बोलेंगे यार ये अपशब्द है, पैंचो बोल रहे हो यार। हाँ, लेकिन पापा पैंचो नाम का रेस्टोरेंट ही है, वहां लोग खाने जाते हैं। तब क्या करें, रेस्टोरेंट पे क्या करेंगे? काली पोत देंगे? नहीं, हर एक शहर का, हर एक भाषा का अपना वो होता है, फ्लेवर है। उसमें आपको क्या ढूंढना है वो देख लीजिए। तो वही मैं कह रहा हूँ, मुझे कोई फैमिली टाइम वाला जो क्वेश्चन है वो मुझे इसलिए वैलिड नहीं लग रहा, कि उसका वेब सीरीज से कोई संबंध नहीं है। और साथ बैठ के देखने के लिए बहुत से कंटेंट है, लेकिन चूंकि हम देखते नहीं इसलिए लोग डिस्करेज हो जाते हैं। तो पंचायत की जगह पे बाकी सब क्राइम, इस समय हमसे कोई, बहुत से लोग बोलते हैं हमसे, अनंत भी वेब सीरीज लिख रहे हैं कई, और तो सब ये बोलते हैं कुछ ऐसा हो ना इसमें कि मतलब क्राइम लेके आओ यार, क्राइम बहुत बिकता है, जितना क्राइम पेट्रोल की है उसकी किसी और की है ही नहीं, ऐसा कुछ लेके आओ इसमें क्राइम हो। तो जैसे मैंने कहा, किसी को कुछ कॉन्सेप्ट सुनाए, बोले इसमें वो हुक पॉइंट नहीं है, कुछ ऐसा क्या हो कि मर्डर हुआ, फंस गया हो, कुछ हो गया हो, तब अब ये तो वैसी ही बात है। मतलब इसमें मेरे ख्याल से जितना मैं कहना चाहता, अनंत आगे जोड़ सकते हैं, ये मेरा पर्सनल, बहुत ही पर्सनल विचार है। जी बिल्कुल, आप जैसा कह रहे हैं कि आजकल की वेब सीरीज में गाली गलौज बहुत है, और उस तरह के सीन्स हैं या ऐसी स्टोरीज हैं जो हम फैमिली के साथ देखना पसंद नहीं करते, या फैमिली के साथ देखने में परेशानी होती है। तो देखिए, चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, दुनिया इवॉल्व हो रही है, ज़माना इवॉल्व हो रहा है, और ये हमेशा से चला आ रहा है। ऐसा नहीं है, आप अगर 50 साल पहले की कुछ फिल्में उठा के देखेंगे तो वो अपने वक्त के हिसाब से ऐसी थी कि जिनको लोग कहते थे कि भाई ये कैसे परिवार के साथ बैठ के देखें, ये क्या दिखा रहे हैं। तो ये तो हमेशा रहेगा। और वैसे भी चूंकि आर्ट सब्जेक्टिव होता है, और चूंकि वो रिफ्लेक्शन होता है रियल लाइफ का, तो जो रियल लाइफ में चल रहा है वो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हम उससे मुंह भी नहीं फेर सकते, और ये भी नहीं कह सकते कि भाई ये हमें न दिखाओ। इनफैक्ट बहुत से लोग तो देखना चाहते भी हैं, इसीलिए शायद इस तरह की चीज़ें बन रही हैं। बाकी सबका अपना अपना मत है, और सबकी अपनी अपनी सोच है। और अगर आज की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, जब राम तेरी गंगा मैली रिलीज हुई थी और हमारे पापा मम्मी पिक्चर हम देखने गए थे, तो जैसे ही वो कहते हैं पर्वत के नीचे लपेटे हूँ, साड़ी में खुद को सिमेटे हूँ, पापा मेरा मुंह अपना पेट में घुसेड़ देते थे, बार बार देखने ही देते थे ना। मंदाकिनी को ठीक से देख पाया उस समय से, बाद में VHS लाके खूब रिवाइंड फॉरवर्ड करके देखा। तो फिल्म तो उस समय भी ऐसी बन रही थी। अब आपकी चॉइस थी कि कब बच्चे का मुंह पेट में डाल लेना है जिससे कि वो मंदाकिनी को ना देख पाए और राजीव राय को ना देख पाए। क्या करें, ऐसा ही करना पड़ेगा, लगता है घर में भी चलता रहेगा। बच्चे को उठा के तुरंत बच्चे को रेडी रखेंगे, तुरंत उसके मुंह पे चद्दर डाल दिया, फिर जैसे किया फिर खोल दिया, ऐसे कुछ करेंगे और क्या करेंगे। एक सवाल, आप मतलब ये सवाल का बहुत सही आपने, मतलब मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा ये आंसर, कि हमें अगर फैमिली के साथ देखना ही है, टाइम बिताना ही, तो फिर वेब सीरीज क्यों देखनी है? और जब वेब सीरीज देखनी है तो फिर फैमिली के वही वाली बात की, हर एक का अपना एक कंटेंट, हर एक का अपना ऑडियंस है। आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है सर, अपकमिंग प्रोजेक्ट, इफ यू कैन ड्रीम तो क्या है, मैंने आपसे बोला ना कि हम सब के, हमारे अनंत और नसेहा के सबके फोल्डर्स हैं कंप्यूटर में, लैपटॉप में, बहुत सी कहानियां हैं। अब वो किस दिन वो कहानी इतनी परिपक्व हो जाएगी कि निकल के बोले कि चलो मेरा समय आ गया, अब मुझे डिलीवर करो। तो ये सब जेस्टेशन पीरियड चल रहा है बहुत सी कहानियों का। ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होता है, ड्रीम तो होगा कि जिस समय इतवार बनाया लगा ये बन जाए, रिलीज हो जाए। फिर अब इस समय दूसरी एक दिल में कहानी है जिसकी फीचर फिल्म की स्क्रिप्ट ये बन जाए, जब वो बन जाएगी तो अगली होगी। तो ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाना है, झंडा लग जाएगा उसके बाद तो खत्म हो जाएगी जर्नी, ऐसा तो है नहीं। मरते मरते भी 2 फिल्में तो रह ही जाएंगी बनाने को। तो हम नए ऑथर्स के साथ सोच सकते, जैसे आपने कहा कि आपके और अनंत जी के फोल्डर में काफी स्टोरीज पड़ी हैं,
तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि नए ऑथर्स को भी मतलब दे कुड से कि नहीं यार अगर अच्छी स्टोरी हमने लिखी है तो राहुल सर और आनंद सर जो है हमारी स्टोरी पे भी कुछ ऐसा बनाने वाले हैं। अरे मैंने बोला ना, आपकी कहानी खुद निकल के आ जाएगी। आप सब लोग लिखते रहिए, सब चारों तरफ बिल्कुल डेमोक्रेसी है। हम आपके लैपटॉप को, आप बिल्कुल कहानी को पकाइए और देखिए कूद के निकलेगी और एक दिन वो बन जाएगी। ये मेरा चैलेंज है। आप आर्ट क्रिएट करते हैं तो कंफ्यूजन आपको बहुत बड़ा भ्रम है। आर्ट अपने आप चूज करती है किसके थ्रू मुझे सृजन होना है। तो आप करते रहिए, देखिए हम सबका वही हाल होना है। सबकी कहानियां, सबके नॉवेल, सबके गाने एक दिन निकल के आएंगे। वो अपने आप जब मैच्योर हो जाएंगे निकल आएंगे, उनका समय आएगा। बट वो ऐसा नहीं है 9 महीने का लॉक नहीं किया ना बच्चों की तरह। गाने और आर्ट के फील्ड में कोई जेस्टेशन पीरियड लॉक नहीं है। 9 साल लग सकता है और 9 महीने लग सकते हैं, कोई पता नहीं। ओके चलिए, वीकेंड है तो ज्यादा इस कन्वर्सेशन को लंबा नहीं रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन मेरा नासिहा से होगा। नासिहा, आपने हमें हायर की कहानी बताई, आपने हमें उसके दोनों पार्ट डिसेप्शन और इनोसेंस का बताया, आपने परप्लेक्सिटी का बताया। अब जैसा देखिए सर तो फिल्म लाइन से है तो पता नहीं चलता क्योंकि बड़े आर्टिस्ट हैं। हालांकि सर अपने आप को सर कहने से मतलब कहते हैं कि अभी मुझे नाइटहुड नहीं मिला तो सर ना कहें। आप बताएं आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है? अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ रू, विच इज अ मर्डर मिस्ट्री। ज्यादा मिस्ट्री है नहीं, पहले ही सीन में प्रोटैगनिस्ट का खून हो चुका है एंड हाफ ऑफ द वो वहीं से स्टार्ट ही है। नशा ये आपकी किताब फैमिली के साथ बैठ के पढ़ सकते हैं कि नहीं? हाँ, फैमिली के साथ पढ़ सकते हैं। बस एयर को आप फैमिली के साथ ना पढ़े, और उसमें मैंने डिस्क्लेमर लिखा हुआ है। एंड फॉर एयर आई वांटेड इट टू बी डिफरेंट, लेकिन रू एंड परप्लेक्सिटी पूरी फैमिली के साथ पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट ये स्टोरीज मैंने पापा को भी बताई, पापा ये ऐसी स्टोरी है। अच्छा एंड ही इज लाइक या गो अहेड। तो देन द स्टोरी मूव्स ऑन कि हुआ क्या था। जो प्राइम सस्पेक्ट है, देयर इज अ कोर्ट केस, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, दैट्स द हाफ ऑफ द स्टोरी। देन story moves to court case, some one party wins, and then you get a different turn and twist kyunki there are diaries that is available about this girl jo jiska death ho chuka hai, and it starts from when she is 16-17 years old, and that's her journey till the time she becomes a business tycoon and what she goes through it, and that gives a clue as who the killer is all along. And तो वो एडिटिंग कर रही हूँ। ये स्टोरी मैं 4 बार रीराइट कर चुकी हूँ। स्टिल इट्स लाइक कि नहीं, कुछ मिसिंग है। टाइम आई एम हैप्पी विद द रीराइट, जस्ट द लास्ट पोर्शन नीड्स टू बी, जब 2 डायरी स्वैप होते हैं बिटवीन द किलर स्टोरी एंड दिस गर्ल्स डायरी, वो उसको फिर से रीराइट करना है। बिकॉज आई नो इट्स लाइक 5 years आई रोट इट, केप्ट इट, नहीं हुआ, वापस लाओ, ये इसको करना है। और ये स्टोरी मुझे छोड़ नहीं रही है, ना ही मैं उसको छोड़ रही हूँ। आफ्टर एवरी 6 or 7 months ये वापस आती है एंड हम थोड़ा नोक झोंक शुरू कर देते हैं एक दूसरे के साथ। नहीं, ये आर्टिस्ट की खुद से खुद की लड़ाई तो चलती रहती है। And on this note, I would like to end the session. And thank you all guys, thank you all of you, thank you Rahul sir, thank you Anand sir, thank you Nashiha, and thank you Vikas ji for having such a wonderful session. Thank you. Thank you so much, and so grateful to be here.